Hello guys, so in this video lecture we are going to see the next point in basic principles of chemistry unit, and that is what IUPAC nomenclature of organic compounds containing one or more functional group. Organic compounds में अगर एक functional group हो या एक से ज़्यादा functional group हो तो उनको हम nomenclature कैसे देते हैं? How we give the IUPAC names to the compounds having only one functional group or more than one functional group, and what are the rules involved, that also we are going to see. So let us start the point, new point, and that is IUPAC nomenclature. Write down heading IUPAC nomenclature of compounds. IUPAC nomenclature of compounds. IUPAC nomenclature of compounds containing one or more compounds containing one or more functional groups. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसको कैसे नेमिंग देते हैं. ओके, नाउ देयर आर द रूल्स, बट बिफोर दैट we must identify whether a compound contains one or more functional group. ठीक है, अब इसमें कुछ functional group ऐसे होते हैं दोस्तों. There are some functional groups, they may appear as a prefix, okay, and some functional groups they may be appear as a suffix. So which are the functional groups they appear as a prefix or suffix, and which are the functional groups which always appear as a prefix, that we will see. Okay, अब इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फंक्शनल ग्रुप्स है, अब कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एज अ प्रीफिक्स आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में. ओके, नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम लिखते हैं इट विल कम एज अ प्रीफिक्स. फॉर एग्जांपल अब नाइट्रो है, नाइट्रोप्रोपेन. ओके, तो प्रोपेन हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो, it is appearing as a prefix in the organic, naming the organic compound. ठीक है, तो वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है which come as a prefix, that is a secondary functional group. Okay, and which are the principal functional group, that is suffix. Suffix means ending the name of organic compound, and prefix means if it comes before the name of organic compound. Organic compound के नेम के पहले अगर वो वर्ड आता है तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स. ओके, समझो अगर 2 नाइट्रोप्रोपेन है, देखो 2 नाइट्रोप्रोपेन, अब नाइट्रो आपको ग्रुप पता है 2 नाइट्रोप्रोपेन. अब नाइट्रो ये ग्रुप पता है आपको, फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट, NO2, और वो सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है प्रोपेन के, 2 नाइट्रोप्रोपेन. ठीक है, अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन हो गए 3, इस पे हाइड्रोजन हो गए 3, इस पे एक ही हाइड्रोजन. तो ये स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों. अब इसमें ये जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है इट अपीयर्स एज अ प्रीफिक्स. ओके, एज अ प्रीफिक्स. लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स ऐड होता है. देखो आप समझो, मेरे पास है CH3, CH2, CH2OH. ठीक है, अब इसका नेम है प्रोपेन और E is replaced by OL. Now in case of alkane, the end of this compound is by E. That E suffix is removed by OL because the functional group is alcohol. तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सी होता है, इसलिए हम अल्केन का E रिप्लेस करके सफिक्स OL लगाते हैं. तो यहाँ पे अल्कोहल में अब देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स आया है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स आ गया. ओके, सो दैट you must know. Okay, but suppose now there are, if IUPAC nomenclature that we have seen about the IUPAC nomenclature of compounds containing one functional group, अगर एक ही functional group है, अगर समझो more than one functional group है, उसमें हम कौन से functional group को prefix में डालते हैं और कौन से functional group को suffix में डालते हैं, that also we will see. Okay, so we'll see one by one these points. ठीक है, तो चलिए अब start करते हैं guys. IUPAC nomenclature of compounds containing one or more functional group. Okay, अब आप एक टेबल ले लो, उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स आते हैं या कभी कभी प्रीफिक्स आते हैं,
वो हम देखते हैं, ठीक है। राइट डाउन अ फंक्शनल ग्रुप अपीयरिंग एज अ प्रीफिक्स, राइट डाउन टेबल अ फंक्शनल ग्रुप appearing as a prefix or suffix, ठीक है। कभी कभी प्रीफिक्स, कभी कभी सफिक्स, ठीक है। राइट डाउन प्रीफिक्स और सफिक्स एंड सफिक्स, या एंड करो यहाँ पे, ठीक है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कभी कभी ये एज अ प्रीफिक्स आते हैं, कभी कभी सफिक्स, ओके। अब प्रीफिक्स कब आएंगे? अगर इनका इंपॉर्टेंस कम हो उस फंक्शनल ग्रुप का, और अगर उसी कंपाउंड का प्रेफरेंस ज्यादा हो, इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, तो वो एज अ सफिक्स आता है, ठीक है। जैसे मैंने प्रोपेनॉल कहा, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल में OL दैट इज अल्कोहल, अल्कोहल इज हैविंग मोर इंपॉर्टेंस, सो इट कम्स एज अ सफिक्स। अगर टू नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इट केम एज अ प्रीफिक्स बिकॉज इट इज हैविंग सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, ओके। तो कौन से वो फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो प्रीफिक्स बोल के आते हैं तो वो उनका प्रीफिक्स क्या होता है? If they come as a prefix, then what is their pronunciation or how we pronounce them? Okay. If they come as a suffix, then how should be the ending of the name of the organic compound? Okay. Organic compound का end हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। A functional group appearing as a suffix and prefix. Okay. So write down functional group. अगर functional group यहाँ पे मैं shortly लिखता हूँ FG, ठीक है। Prefix and suffix, prefix and suffix, ठीक है। So write down functional group. First write down first functional group COOH dash COOH. If it comes as a prefix, it will be written as carboxy. Okay. अगर prefix as a prefix आपने राइट किया इसको COOH, so it is appeared as a carboxy. You can write it as a carboxy, and as a suffix you can end the name of compound by OIC acid, ठीक है। OIC acid. अब एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं, देखो आपको समझो, मेरे पास है CH3 COOH, तो इसका नेम होता है दोस्तों, व्हाट इज द नेम? अब दो कार्बन है इसलिए मैं IUPAC नेम बोलता हूं इसका, देखो इथेन, E is replaced by OIC acid, so what is the name of IUPAC name of this compound? Ethanoic acid, ethanoic acid. Now in this case this COOH group is a principal or functional group, principal functional group or main functional group, ठीक है। it will not come as a prefix, it comes as a suffix, okay। तो इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो CH3COOH इथेनोइक एसिड, ठीक है। राइट डाउन दिस इथेनोइक एसिड एग्जांपल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड राइट डाउन COOR, COOR सेकंड COOR. So if it came as a prefix, it is written as alkoxycarbonyl. alkoxy ये अल्कोक्सी ग्रुप है और ये कार्बोनिल, alkoxycarbonyl, okay। And as a suffix it is written as OATE, this functional group OATE. but most of the आपके सिलेबस में कंपाउंड जो है most of the time this COH COR they come as what? suffix, ठीक है। तो आपको जनरली एज सफिक्स ही आपको याद रखने हैं। अब इसको समझो, मेरे पास है C, यहां पे मैं लगाता हूं CH3 COOCH3, ठीक है। अब इसका नेम क्या होता है देखो, दिस इज व्हाट? मिथाइल ग्रुप, सो द IUPAC नेम इज मिथाइल, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप, और ये जो दो कार्बन है, दो कार्बन का अल्केन होता है इथेन, मिथाइल इथेन O8,
इथेन का ई रिप्लेस करके मैंने ये लगाया सफिक्स OATE, ठीक है, मिथाइल इथानोएट, दिस इज द नेम ऑफ दिस एस्टर, दिस इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप। अगर इसका एग्जांपल आपने लिया तो मिथाइल इथानोएट, एक एग्जांपल आपको बताया मैंने, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने मिथाइल लगाया, यहाँ पे C6H5 बेंजीन रिंग, फिनिल रिंग लगाई, तो मिथाइल बेंजोएट ऐसा नेम इसका होगा, मैंने ऐसे लगाया था, ओके। COOCH3, तो CH3 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बेंजोएट, benzoate means C and this phenyl ring, it is what methyl benzoate, okay. So remember this example, write down these examples. Next functional group we will write. First of all, write down these when it came as a suffix. We have taken the examples. So most of the time they come as a suffix. In your syllabus you have these structures in which they come as a suffix, ठीक है। Now take third functional group. As a prefix it appear COCl, COCL, COCL. Write down third, that is what COCl, chlorocarbonyl, chlorocarbonyl. But generally you have this functional group as a suffix OYL chloride, OYL chloride, ठीक है। एज अ सफिक्स ही आपको एग्जांपल से ज्यादातर आपके सिलेबस में देखो, समझो मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2H5C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन, तो मैं लिखता हूँ प्रोपेन, प्रोपेन, और E रिप्लेस करके वहां पे मैं सफिक्स लगाता हूँ OYL क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ओके। सो एज अ सफिक्स you can take the example if this function group came, okay. ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन फोर्थ फंक्शनल ग्रुप, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप CONH2, CONH2, CONH2 जो जिसको हम कहते हैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अमाइड CONH2, fourth functional group that is CONH2. As a prefix it came as a carbamyl, carbamyl, and IUP suffix as a amide, ठीक है, as a suffix amide, ठीक है। You can take any example dash amide, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के लिए ले लो, समझो मेरे पास है CH3 CH2 CONH2, ओके। तो ये हो गया प्रोपेन अमाइड, ठीक है, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, E is replaced by AMIDE, example प्रोपेन अमाइड, okay. Next write down C triple bond N, fifth functional group. If it came as a prefix, इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे हैं दोस्तों, आप बहुत, अगर आपके सिलेबस में जब हम फंक्शनल ग्रुप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप है और उनके एग्जाम्पल्स है। आपको यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स आया तो उसका नेम हम कैसे राइट करते हैं, और एज अ सफिक्स आ गया तो उसका नेम कैसे राइट करते हैं वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो राइट डाउन फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप एंड दैट इज CN। अब यहाँ पे मैं डैश CN लिखता हूँ, डैश C triple bond N. As a prefix it comes as a cyno, and as a suffix it came as a nitrile, ठीक है, as a nitrile,
ठीक है। अब समझो मेरे पास है दो फंक्शनल ग्रुप। ओके, एक फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस है और समझो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है और COOH फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रेफरेंस होता है, वो हम ऑर्डर भी देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस होगा। ओके, इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस। अगर समझो साइनाइड और COH दोनों भी है, ठीक है, समझो मेरे पास है ऐसा कंपाउंड CH3 CH2 CHCN CH2 COOH, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम जो है मैं क्या दूंगा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम्स है, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। पेंटेन और E रिप्लेस्ड बाय OIC एसिड, क्योंकि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है COH को। IUPAC इट इज एज पर द IUPAC रिकमेंडेशन। तो ये सेकंड, अब ये फर्स्ट कार्बन कंसीडर करते हैं, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 साइनो। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 3 साइनो पेंटेनोइक एसिड, 3 साइनो पेंटेनोइक एसिड। क्यों? बिकॉज COH ग्रुप possess more significance than cyanide. So here cyanide came as a what? Prefix, and this carboxylic acid as a suffix. So this you have to remember. अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो दो फंक्शनल ग्रुप में एक फंक्शनल ग्रुप, दो या दो से ज्यादा भी फंक्शनल ग्रुप हो, तो एक फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रिंसिपल होगा या मेन फंक्शनल ग्रुप, और अदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा इट इज एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड इट विल केम एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। ये पार्ट याद रखो, ठीक है। साइनाइड, देन साइनो फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद और एज अ सफिक्स, अगर आपने इसके एग्जांपल देखे तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं एज अ सफिक्स। ओके, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन से, एक ही फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें ज्यादा प्रोपेन नाइट्राइल। ओके, प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं इसको, ठीक है। So write down this propane nitrile example. Propane nitrile. Okay, next, sixth functional group. Write down sixth functional group, and that is what? CHO dash C double bond OH, और इसको ऐसे भी लिखते हैं dash CHO। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ये। As a prefix, it can be written as a formyl, and as a suffix, it can be written as Al-Al. Okay, आप समझो। As a prefix में एक एग्जांपल देता हूँ। As a prefix, CH3 CH CHO CH और COOH, ऐसा अगर मैंने लिखा COOH, ठीक है। अब इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COH है, दूसरा CHO। COH को ज्यादा प्रेफरेंस होता है, तो 1 2 3, तो ये सेकंड पे क्या आ गया है, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। सो 2 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड इज द नेम। ओके, 2 फॉर्माइल 2 डैश, यहाँ पे हाइफन भी लगाओ आप। 2 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड इज द नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन अगर एज अ सफिक्स आपको देखना है, एज सफिक्स से कैसे आता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल, इथेन, और E is replaced by Al. Okay, so as a suffix also we have seen the example, and as a prefix also we have seen the example. Note down, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। ओके, आफ्टर दैट राइट डाउन फॉर्मल के बाद और एक फंक्शनल ग्रुप लो, जैसा कि कीटोन हम लेते हैं C डबल बॉन्ड O। राइट डाउन C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड O। सो एज C डबल बॉन्ड O, जैसे कीटोन है, इसको एज अ प्रीफिक्स लेते हैं ऑक्सो, ऑक्सो, ठीक है, एंड एज a suffix it can be taken as ONE, ONE, ठीक है, ONE। सॉरी,
उसका भी एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हो। अब देखो मेरे पास ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप है, अगर यहाँ पे मेरे पास है CHO और COOH, ओके। अगर मेरे पास है, देखो समझो कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। अब इसमें भी दो फंक्शन ग्रुप है, एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और एक सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। सो मैं आप 1 2 3 ओके 3 4, सो 3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे क्या है, व्हाट इट इज सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल विल बी द नेम एज अ प्रीफिक्स। ये फंक्शन ग्रुप आ गया C डबल बॉन्ड O, उसको लेस इंपॉर्टेंस है और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैं लिखता हूं 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल, E is replaced by Al, सफिक्स में आ गया ये फंक्शन ग्रुप और ये एज अ सब्स्टिट्यूट आ गया, ओके 3 ऑक्सो, सो एज अ प्रीफिक्स इट केम। अगर C डबल बॉन्ड O एज अ सफिक्स आता है तो एग्जांपल के लिए देता हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 3 कार्बन है और सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, तो प्रोपेनोन, E is replaced by ONE, propanone, very easy, okay। So write down these two examples. Next, OH, 8th functional group, OH जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी या अल्कोहल। अगर एलिफेटिक चेन को वो OH अटैच है तो अल्कोहल, ठीक है, OH हाइड्रोक्सी, as a prefix it came as a hydroxy, 8th functional group dash OH, as a prefix it came as a hydroxy and as suffix it came as a OL, okay, we have taken the example already। 9th functional group, take dash NH2, as a prefix it came as a amino, as a prefix it came as a amino and as a suffix it came as a amine, ठीक है, as a suffix it came as a amine। So write down these important points, okay। A functional group appearing as a prefix and suffix, we are looking at the IUPAC nomenclature of compounds containing one or more functional groups, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो कौन से फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स आते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप एज अ सफिक्स आते हैं। कभी कभी अब ये इंपॉर्टेंस किसको देना है, आपको एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर फॉलो करके इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो तो, अगर एक ही फंक्शन ग्रुप है तो वो एज अ सफिक्स आएगा, और एज अ सफिक्स हमने देखा अगर OH है तो OL, NH2 होगा डैश NH2 तो अमाइन, ठीक है, COOH होगा तो OIC एसिड, CH होगा एल्डिहाइड तो Al से एंडिंग करना है, कीटोन होगा तो ONE से एंडिंग करना है, E of that alkane is always replaced, okay, very simple। तो आपको ये बहुत, अगर ये जो कंपाउंड्स है इन कंपाउंड्स के हम एग्जांपल्स भी लेंगे और आपको इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स, जब हम 12th में जाएंगे तो 12th में आपको ये इसके एग्जांपल्स बहुत हैं। हर एक जो यूनिट है अल्कोहल है तो अल्कोहल के स्पेसिफिक एग्जांपल्स, ठीक है, अमाइंस में बहुत सारे एग्जांपल्स, अल्डिहाइड्स में बहुत एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत एग्जांपल, ठीक है। तो वैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स उसके ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम भी लेंगे इसमें, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इफ द फंक्शन ग्रुप is came as a prefix, how it is written, and if it appears as a suffix, how it is written, okay, that we have seen। Now we'll see the functional group which always appear as a prefix, okay। Next write down a functional group appearing always as a prefix, ठीक है, functional group appearing only as a prefix, always या only as a prefix, as a prefix कौन से फंक्शन ग्रुप है वो always as a prefix आते हैं, तो हम वो नोट डाउन करके लेते हैं, ठीक है। So make two column functional group and prefix, this functional group always came as a prefix, ठीक है। So write down here first dash NO2, ये as a prefix ही आता है always, so it is came as a nitro, okay, nitro। then second write down dash X, X means यहाँ पे FClBrI, that is halogens, so it came as a prefix when it is written as a
हैलोजन्स का हेलो, थर्ड OR डैश OR, R में से यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, OCH3 हो सकता है, OC2H5 भी हो सकता है, ठीक है, etc. So it is alkoxy, ठीक है, जनरली इट इज रिटन एज अल्कोक्सी. अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो मिथॉक्सी, इथाइल ग्रुप है तो इथॉक्सी, यहाँ पे हेलो है तो फ्लोरो, डैश F आ गया तो फ्लोरो, डैश Cl हो तो क्लोरो, डैश Br हो तो ब्रोमो, डैश I है तो आयोडो, ठीक है. सो राइट डाउन दिस फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज अपीयर एज अ प्रीफिक्स, ठीक है. इसके एग्जांपल भी हम बहुत सारे ले सकते हैं. अब देखो समझो, मैंने एक एग्जांपल में दिखाता हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे मेरे पास समझो एक कंपाउंड है CH3 CHCl CH3. Now this is the what halo group, so chloro. Okay, so I will write down, give the numbering to this chain, longest carbon continuous chain, 2 chloro propane. प्रोपेन पे सेकंड कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है Cl. सो इट अपीयर एज अ प्रीफिक्स, 2 क्लोरो पहले आ गया और फिर नेम ऑफ द कंपाउंड प्रोपेन, ठीक है. वैसे ही अगर यहाँ पे NO2 लगाया मैंने तो 2 नाइट्रोप्रोपेन, अगर मैंने मिथॉक्सी ग्रुप लगाया तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. वेरी इजी. ओके, सो राइट डाउन दिस विद एग्जांपल, राइट डाउन दिस. Okay, so this is what we have seen about the how the functional group, if they came as a prefix, how they are written, if they came as a suffix, how they are written, and the functional groups which always appear as a prefix. Okay, so note down these points. After that we will move to the next point. Okay, ठीक है. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. हाँ, सपोज अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो कौन से रूल्स है, और एक हो फंक्शनल ग्रुप तो कौन से रूल्स है, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके.